So the identities we have done so far, and the latest ones I'm writing. The first four, these are CD formulas. C and D formulas. C and D formula converts sum or difference of two functions into product. Sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. आद्या जस्ट कैमरा ऑन करो. तो sum of two functions, it converts into product. साइन पहले आएगा उसमें प्लस होगा और कॉस में माइनस होगा. If it's sin C minus sin D, it would be 2 cos C plus D by 2. अब cos में प्लस हो गया, मतलब sin and cos की places इंटरचेंज हो गई, and sin would be C minus D by 2. That is when you have sin C minus sin D. Then we have cos C plus cos D. Cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Cos में both the terms are of cos. Cos C plus D by 2, cos C minus D by 2. Then if it's minus, cos C minus cos D would be minus sign outside 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. So in the case of sin C, cos C minus cos D, both the terms would be sine, and there'll be a negative sign outside. Now this negative sign here, we can bring over there. So we have another identity of cos C minus cos D, which could be 2 sine C plus D by 2 into sine, will become D minus C by 2. So in place of C minus D by 2, it becomes D minus C by 2. So these are CD formulas. इनको यूज कब करना है, कैसे पता लगेगा सी एंड डी फॉर्मूला यूज करना है? जब भी एंगल चेंज होता है एंड सम और डिफरेंस कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सी डी फॉर्मूला यूज करना है. सी डी फॉर्मूले में हमेशा सम ऑफ फंक्शंस एंड और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में. तो क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा इसमें सी डी फॉर्मूला यूज होना है. Now look at the question, page 3, page 11 पे question number 3. The first question is, A part is sin A plus sin 2A plus sin 4A plus sin 5A divided by cos A plus cos 2A plus
cos 4a plus cos 5a equals to tan of 3a. सो लेफ्ट साइड में तुम देखो चार फंक्शन न्यूमरेटर में है और चार फंक्शन डिनोमिनेटर में है. राइट साइड में वी हैव ओनली वन फंक्शन विच इज tan ऑफ 3a. tan ऑफ 3 का मतलब वो sin 3 बाय cos 3 है. तो बेसिकली चार फंक्शन न्यूमरेटर के रिड्यूस होके sin 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं. चार फंक्शन cos के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं. वन फंक्शन cos 3 है. मतलब समवेयर वी नीड टू अप्लाई सी डी फॉर्मूलाज. ठीक है. लेकिन वाइल यूजिंग सी डी फॉर्मूला हम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि एंगल का सम जिन टर्म्स में इक्वल आ रहा है उनको क्लब कर लो. लाइक दिस एंड दिस. दिस इज 5 एंड दिस इज ए. तो 5a प्लस 6 है. 5a प्लस ए 6 है ना. सिमिलरली इन दोनों में 2a प्लस 4a 6 से होता है. तो विल ट्राई टू क्लब दीज टू टुगेदर एंड यूज सी डी फॉर्मूला. तो ऐसा करो. स्टार्ट फ्रॉम एल एच एस एंड regrouping the terms, apply C and D formula. तो हमें क्या करना है. साइन ए प्लस साइन 4a को इकट्ठा ले लो और साइन 5a सॉरी और साइन 2a एंड साइन 4a को क्लब करो. और साइन सी प्लस साइन डी दो बार यूज हो जाएगा न्यूमरेटर में. Similarly, in the denominator, you can club cos a plus cos 5a sin a plus sin 5a. So when you apply sin C plus sin D, this would be C and this would be D. उल्टा भी हो सकता है. It won't make a difference. So without making silly mistake, try करो. और I will advise कि तुम पूरा लिखना. जल्दबाजी में डायरेक्ट आंसर मत लिखना. तो sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 ऐसे लिखो. A plus 5a divide by 2 cos A minus 5a divide by 2. Similarly, the next term कर लो. हो गया. क्या आ गया आंसर. बी पार्ट करो फिर. बी एंड सी दोनों पार्ट कर रहे हैं इसके. नीचे ये टू यूज cos c प्लस cos d. cos c प्लस cos d नो. दोनों में cos cos आएगा. cos a प्लस 5a बाई 2 cos a माइनस 5a बाई 2. दिस वुड बी. अच्छा मैंने साइन लिख दिया ना. मिसप्रिंट हो गया. तो cos है. दिस इज cos 2a plus cos 4a. So this would be 2 cos 2a plus 4a by 2
cos 2a minus 4a by 2. So we have used C and D formulas. तो अब क्या हो रहा है? न्यूमरेटर से इफ यू वांट यू कैन टेक 2 कॉमन. इससे इसको मत काट देना, ये एंगल का पार्ट है, ये 2 बाहर है, ठीक है. a plus 5a would be sin 6a by 2 will be sin 3a, right? Cos a minus 5a would be cos minus 4a divided by 2 would be cos of minus 2a. So ultimately वो प्लस ही हो जाएगा. ये भी तुमने कॉमन ले लिया. What about this? This is 2 कॉमन ले चुके हो. This would be sin 3a. This would be cos of 2a minus 4a, that is minus 2a by 2 cos of minus a. So this is the numerator. Denominator से भी 2 कॉमन आ रहा है. a plus 5a would be 6 by 2, that is cos 3a. Minus 5a plus a minus 4a by 2 will be minus 2a. This would be cos 3a, and this is cos of minus a. As you know, cos of minus theta is cos theta. If you want, you can write it side में as cos minus theta is cos theta. ये पॉजिटिव हो जाएगा. अब जरा देखो, 2 से 2 कट गया. न्यूमरेटर से sin 3a कॉमन आ रहा है ना. sin 3 कॉमन ले लो. इट वुड बी cos 2a प्लस cos a. डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है? cos 3a and it is cos 2a plus cos a. ये पूरी टर्म कट जाएगी. sin 3a by cos 3a is tan 3a, which is RHS. तो this is A part of question 3 on page 11. Answer B and C part. B और C कर लो अब इसका. जाना कब था? जाना कब था? अच्छा. हो गया थर्व. सर बस बी वाला पार्ट शुरू करा है अभी। ठीक. दिव्या तुम क्या कर रही हो? मैं बी पार्ट के बीच में हूँ, अच्छा. खत्म होने वाला है। ओके. क्या हुआ? ये नहीं हुआ? कहीं देखो साइन की गलती कर दी क्या तुमने? साइन सी मैंने साइन डी. फिर मैं इसको क्लब किया. 5 है ना. तो 2 बचेगा ना. 8 कैसे हो गया? अच्छा. ओके.
ठीक लग रहा है फिर। माइनस ना? क्यों? अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ ले लो ना, कॉमन ऊपर नीचे काटो। बाकी दोबारा से साइन सी माइनस एन डी लगा दो। देना सेवेंट। 3a - a/2 a हो जाएगा। 5a - 7/2 a हो जाएगा, ठीक है। इफ आई डोंट रीअरेंज, इफ आई यूज एज इट इज, फिर क्या होगा जरा देखो। 2 cos c + d/2, दैट इज a + 3a/2, है ना? एंड साइन a - 3a/2, दिस इज साइन c माइनस साइन d अगेन। 2 cos c + d/2, 5a + 7a/2। तो हाँ, फिर हम ए और साइन ए माइनस साइन 7 ए वो भी और कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, मैंने बिना उसके करना करा, मैंने सिर्फ डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस वाला टर्म सेम आ रहा है। 3a - a/2 a आ रहा है, 7a - 5a/2 भी a आ रहा है। तो सम, या तो सम सेम आ जाए, डिफरेंस सेम आ जाए, तो चल जाएगा। cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c + d/2, a + 3a/2, उससे भी आएगा। एंड साइन d - c/2, 3a - a/2। मैं इस बार d - c वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ मेरे को माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। या तो मैं लिखूँ cos 7a - cos 5 है, ठीक है। ये जो टर्म है इसको मैं cos 7a को पहले लिख लूँ या तो, और cos 5a को बाद में लिखूँ। तो cos c - cos d, या फिर उसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो cos c - cos d इज -2 sin c + d/2, 7a + 5a/2 इंटू साइन c - d/2, 7a - 5a/2। मैंने यूज किया cos c - cos d -2 sin c + d/2, साइन c - d/2। अगर इससे नहीं आएगा तो हम फिर एंगल सम वाला देख के कर लेंगे। बट लेट्स सी। 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से। दिस इज cos 2a, दिस इज साइन ऑफ -a, तो हो जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा, साइन आ जाएगा। दिस इज cos 2 में बाहर ले चुका हूँ, 6 है, राइट। एंड दिस इज माइनस साइन ऑफ माइनस है, विच इज माइनस साइन बाहर, so it is sin a whole divide by, और ठीक है। देखो कोई गलती तो नहीं हुई है। यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया। दिस इज साइन 2a, दिस इज साइन a।
दिस इज माइनस साइन, टू बाहर आ चुका है, साइन 6a, दिस इज साइन a। तो न्यूमरेटर से साइन ए कॉमन आके कट जाएगा, चाहो तो माइनस साइन भी बाहर ले सकते हो। एंड आई थिंक साइन सी डी फॉर्मूला एक बार दोबारा यूज करना पड़ेगा तुम्हें। तो आई कैन टेक minus sin a common from the numerator. What is left? Cos 2a plus cos 6a. This is sin a common. It is sin 2a. यहाँ भी माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन, साइन 6a माइनस साइन 2a। ये कट गया। अभी भी आंसर नहीं आया है, तो दैट मीन्स अगेन यू नीड टू अप्लाई cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2a प्लस 6a, 8a बाई 2 दैट इज 4a। cos c minus d by 2, 6a minus 2a, 4a by 2, that is cos minus 2a होगा, but that is cos 2a only. What about sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2, cos 4a, d c minus d by 2, that is sin 2a। ये कट जाएगा, आंसर tan cot 2a आ गया। तो सर मेरा आंसर माइनस कॉट 2 है यार। वो कहीं गलती, वही साइन, इसमें थोड़ा साइन का ध्यान रखना था। सर आप वो एक बार दूसरी तरह रीग्रुप करके भी कर दो, इससे साइन ए और माइनस साइन 7a को कर दो। उससे भी आएगा। किया किसी ने इससे, ए और 7a को क्लब करके? नहीं नहीं, इतना ही होगा, इसमें भी दो बार ही करना पड़ेगा। हो गया ना? आ जाओ बोर्ड पे कर दो तुम। वो इसी वाले को दूसरे मेथड से क्लब करके, मतलब हमने ए और साइन ए को क्लब करके जो किया था ना, उससे आंसर कर दो एंड यू सॉल्व इट ओवर हियर। हाँ, बात तो एक ही है, बट वो जस्ट बोले कि मेरा नहीं आ रहा उससे। हाँ, यहीं पे कर दो, चलो आओ। शी इज क्लबिंग द एंगल्स ए एंड 7a। हाँ, कॉमन लेना, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, साइन 3 कॉमन आ रहा है, और नीचे cos 3 आ रहा है, ठीक है, बाकी कट जाएगा। tan 3 चाहिए ना तुम्हें? नीचे cos 3 कॉमन ले लो। हाँ, कटना चाहिए, बिकॉज cos ऑफ माइनस इज cos थीटा, cos थीटा cos थीटा हो जाएगा ये। शी इज क्लब साइन ए विद साइन 7a, और नीचे cos एंड cos 7a को क्लब किया इसने। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो cos 5a माइनस cos 7a हो गया। नहीं तो cos नहीं आएगा तो साइन आएगा ना। अच्छा, तुमने क्या किया? अच्छा, ये क्लब अच्छा 3 and 5 है, ठीक है ठीक है ठीक, परफेक्ट। 3 and 5 को क्लब कर लिया, इन दोनों को क्लब किया। आद्या, तुम क्या कर रही हो? थर्ड पार्ट। ठीक।
अब न्यूमरेटर से cos 4a कॉमन आ रहा है, -sin 3 आएगा ना, -sin 3 बचेगा, जैसे -sin कॉमन तो फिर माइनस आएगा वहाँ पे। हाँ, cos 4a कॉमन ले लेते हैं ना नीचे से, 2 cos 4a कॉमन लो, हो गया। अच्छा, बी वाला नहीं किया तुमने अभी, बी वाला नहीं किया था, सी पहले कर लिया, सी पहले कर लिया। अच्छा, ये था। अब sin 3 माइनस साइन एट, तो टेकिंग -sin कॉमन, तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, sin c माइनस sin d, ठीक है, 2a/2, cos c माइनस cos d, 2a/2, sin 2a/2 कट गया, ऊपर नीचे से माइनस माइनस कट गया, और cot 2 आंसर आ गया। सो ये द सेम आंसर, जस्ट द वे आर डन ऑल। Calculation you see. हाँ, इसमें ना नेगेटिव का ध्यान रखना होता है। यस सर। ओके, अथर्व क्या चल रहा है, कौन सा हुआ? सर थर्ड वाला मेरा बहुत स्लाइटली रॉन्ग आ रहा है। वही, साइन की कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मतलब प्रूफ sin 3a/sin 5a करना है, मेरा sin 2a/sin 6a आ रहा है। अच्छा, एक cot 4 है, नहीं cot 2 है ये, तुम ऐसी गलतियां करके आओगे वहां पे, 4a/2 था ना वो। हो गया ना व्यस्त, सी पार्ट। सी पार्ट में तुम्हें ऑलरेडी पता लग रहा है मैं करना है क्या है, सिर्फ इन्हीं दो को क्लब कर सकते हो तुम, इनमें साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो। सी क्लब दस टू। सर मैंने इसमें जो 2sin 3a है उसको हम्म, sin 3a+sin 3a में स्प्लिट करा है, अरे उसके क्यों बाद तुम इसको, ओहो ये तो बड़ी, तुम लंबा कर रहे हो, नेसेसरी टाइम, टाइम वेस्ट वाली बात होगी वो तो, वो ऑलरेडी तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा था हमारा, उसको ऐसे ही छोड़ना है, डोंट डिस्टर्ब दिस, बाकी दो क्लब करो। ओके। तो 2 sin 6a/2 cos 5a - a, दैट इज 4a/2। ये तो हमारा दोस्त है, 2 लगा हुआ है उसमें, उसका तक उसको टच नहीं करना है हमें, इनको क्लब करो, sin 3 एंड sin 7a, तो 2 sin 10a/2 and cos 7a - 3, that is
4a/2, 2 sin 5a। बड़ी टर्म को छोटा करना है ना कि छोटे को बड़ा करना है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ओके सर। लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स न्यूमरेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, उनको रिड्यूस करके वन सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। अब जरा देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ऊपर से कुछ। ये साइन 3a बन गया, टू और 2 sin 3a कॉमन आ गया, तो क्या बचा, cos 2a प्लस 1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 2 5 sin 2 sin 5। 5a, लो कर लो बात, ये भी cos 2a प्लस 1 है। हो गया, तो करने से पहले ही हो गया तो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसके बाद। नहीं नहीं, इसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम डबल एंगल फॉर्मूला डेराइव करेंगे। सो वी हैव डन हाउ मेनी आइडेंटिटीज सो फार, कितनी हो गई टोटल हमारी, 20 हो गई। किसने काउंटिंग की हुई है? हम्म, ठीक है। अब डबल एंगल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो 16 लिखवाया था आपने लास्ट टाइम जब ठीक cos है, b cos c। ठीक है। अब वापस रिकॉल करो ये वाली आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। इस आइडेंटिटी में जस्ट रिप्लेस बी बाय, इस आइडेंटिटी में बी को ए से रिप्लेस करो। देखो क्या आ रहा है, इफ रिप्लेस बी बाय ए व्हाट्स योर रिजल्ट? sin a cos a प्लस cos a sin a sin 2a हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन 2a, राइट साइड वुड बी 2 साइन ए कॉस ए, तो दोनों टर्म सेम है। सो दिस आइडेंटिटी कन्वर्ट्स 2a इंटू ए। अगर कोई एंगल डबल एंगल है, जैसे साइन 120 है, तुम्हें साइन 120 की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, एंड यू वांट कि भाई क्या इसका आंसर आना चाहिए, वैसे तो हम निकाल सकते हैं 180 माइनस थीटा से, लेकिन जिसको वो पता नहीं वो क्या करेगा, इसको लिखेगा 2 इंटू 60। ये हो जाएगा ए, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। तो ये आइडेंटिटी डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करती है, वाइस वर्सा। इफ यू हैव 2 sin a cos a, we can convert to sin 2a also। तो ये डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि अगर लिखा है साइन 2 थीटा, तो विल बी 2 sin थीटा कॉस थीटा। अगर हमारे पास है साइन 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ एंगल कितना हुआ, 4 थीटा/2 कितना हुआ, 2 थीटा। तो बिकम 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा। जो भी एंगल उसका आधा हो जाएगा। सपोज हमारे पास है साइन एक्स, तो एक्स का आधा कितना हुआ, x/2। सो वट एवर एंगल यू हैव, उसको हाफ में रिड्यूस कर देते हैं। सपोज यू हैव साइन 10x, तो क्या होगा इसका कन्वर्जन इस फॉर्मूले से, 2 sin 5x cos 5x। So this is how you can use this. It will convert angle into half. इसको हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? If I divide, now can I write this as 2 sin a cos a by 1? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करूं,
तो क्या होगा? बिकॉज मैं tan में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? एक कॉस कट जाएगा, 2 sin a बाई 2 sin a बाई कॉस से कितना हो गया? 2 tan a। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? सेक्स स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए क्या होता है tan के टर्म में? किसी को पता आइडेंटिटी? आद्या, सेक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ tan? क्या बात है, ऐसा मत बोलो। 1 + tan² नहीं, 1 + tan² होता है। कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है। यू ऑलरेडी नो दिस आइडेंटिटी, सबको पता है ये। इस आइडेंटिटी को चुपके से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। तो अगर तुम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, तो क्या आएगा? sin² बाई cos² है, tan² है, cos² बाई cos² 1 1 बाई cos² है। Similarly, you have cot² plus 1 as cosec² also. Cot² plus 1 is cosec²। तो अब तुम्हारे पास साइन की दो आइडेंटिटीज हो गई। लिख लो, इसको याद करो। तो ये आपने कन्वर्ट कैसे किया वो मेरे को आया नहीं। टू, मैंने इसको बेसिकली डिवाइड कर दिया ना ऊपर नीचे cos² से। 1 को भी अच्छा किया। हाँ, और क्या था, फाउल हो जाएगा। तुम सिर्फ डिवाइड थोड़ी कर, ऊपर नीचे फिर डिवाइड हम कर। सिर्फ लेफ्ट LHS और RHS को अगर कर देते सिर्फ। एलएचएस में कुछ नहीं किया, आरएचएस को हमने लिखा डिवाइड बाय 1, इसको लिखा डिवाइड बाय 1, और ऊपर नीचे cos² से डिवाइड किया। स्टेप में मैंने लिखा किया है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² है। और तुमसे मैंने परमिशन तो ली थी, तुम्हें याद नहीं है? तुमसे पूछा था ना मैंने डिवाइड कर दूं, तुमने कहा था यस, हो गया। सर दू- वैसे ही LHS और RHS को करते होते हैं ये कम दिख। ये याद करना है, एलएचएस तो वही था ना, sin 2 है, ये आरएचएस था। अगर सपोज तुम्हारे पास कोई नंबर है 5, इसको 5/1 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? चेंज थोड़ी कर रहे हैं हम। So now we have these two identities. cos 2a क्या था? cos a plus b, देखो पहले क्या था? cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। इसमें भी b को a से रिप्लेस करो, देखो क्या होता है। रिप्लेस b बाय a। राइट, सो दिस इज येट अनदर आइडेंटिटी ऑफ cos 2a। cos 2a को आधा हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया हमने। मान लो किसी को cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो मैं मालूम है cos 120 माइनस हाफ होता है, बिकॉज 180 माइनस 60 कर सकते हैं, लेकिन सपोज यू फॉरगॉट, तो क्या लिख सकते हो उसको तुम? cos 2 × 60, ए को मतलब 60 से रिप्लेस कर दिया, ये वाली आइडेंटिटी यूज की, cos² 60 माइनस sin² 60। cos² 60 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, sin² 60 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, दैट इज -1/2, सेम आंसर। तो cos 2a को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज यू डोंट वांट cos²a, तो cos² को किससे रिप्लेस कर सकते हो? 1 माइनस साइन करो जरा,
कॉस स्क्वायर ए को 1 - sin² से रिप्लेस करो, देखो फिर क्या आंसर आ रहा है। 1 minus 2 sin square. हम्म। तो कई बार जब हमें कॉस नहीं चाहिए होगा तो हम ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। तो cos 2a की सेकेंड आइडेंटिटी है 1 - 2 sin²a। अब एक काम करो, नेक्स्ट टाइम तुम sin²a को रिप्लेस करो, रिप्लेस sin²a बाय 1 - cos²a। Cos square a minus हम्म। 2 cos square a minus. राइट। tan में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले किया था वैसे करो। हम्म। इसको tan में भी करना है। cos² से कितना आ रहा था, 90 क्या आ रहा था cos 2a। ये आ रहा है, नहीं, कट गया cos², काट दिया cos, मैंने बना रहा हूँ। इसमें कर दो ना, इस वाले में 1 - cos² डाल दो साइन को, tan में कन्वर्ट करो। तो कैसे किया था, इसमें ले लो, ऊपर नीचे, यहाँ लिखो 1, ऊपर नीचे cos² से नहीं नहीं, इसको नीचे 1 लिख के cos² से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे जो पहले किया था। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख के डिवाइडेड, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट इज cos 2a विच इज cos² - sin², ठीक है। इसको मैंने बाय 1 लिखा पहले। अब जैसे पूछ लेते हैं, पहले डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²। राइट साइड में ऊपर नीचे, ये तो 1 था, डिवाइड कर दो cos² से। अलग अलग डिवाइड कर दो अब, दिस बाय दिस तो 1 हो गया, सो 1 - tan² ओवर sec² आ गया, विच इज, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan। तो cos की हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं। 1 - tan² ओवर 1 + tan²। साइन की 2, कॉस की 4, 6 आइडेंटिटी और हो गई। समटाइम्स हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इसको रीअरेंज अगर मैं करूं, 2 sin² को लेफ्ट में ले लिया मैंने, और राइट में लिख दिया cos 2a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मतलब 1 - cos 2a इज 2 sin²। यहाँ पे -1 को इधर ले आओ, 2 cos² बच जाएगा। तो 2 cos² को आई कैन ऑल्सो राइट 1 + cos 2a। In some questions, you'll be using this also. 1 - cos 2 theta is 2 sin² theta.
1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. These are very useful identities. प्लस में cos स्क्वायर मिलता है, माइनस में साइन स्क्वायर मिलता है. Similarly, we can derive identity for tan 2a and cot 2a also. Tan a plus b क्या होता है? अक्षिता, tan a plus b. क्या होगा तुम्हारा? नींद में रहती, मैंने कहा था. tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. इसमें भी b को a से रिप्लेस कर दो, b की जगह a डालो. cot a plus b की आइडेंटिटी याद है किसी को? tan में आइडेंटिटी को याद करने का तरीका ये है कि अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, कॉट में अगर प्लस है तो ऊपर माइनस आता है, और ये टर्म पहले आती है. कॉट ए कॉट बी -1, नीचे कॉट भी तुम पहले लिखोगे, प्लस कॉट ए. इन दोनों में बी को ए से रिप्लेस करो एंड गेट द आइडेंटिटी ऑफ कॉट 2 एंड tan 2 ए. तो क्या आ रहा है? tan 2a इज 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए. याद करने का तरीका ये है कि whatever was the identity of sin 2a, उसमें नीचे माइनस कर दो, प्लस की जगह माइनस आ गया. sin 2a था 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो tan 2a हो जाएगा. व्हाट इज cot 2a? दिव्या कर लिया? दिव्या, कहाँ कहाँ हो तुम, सो गई? नो सर। कहाँ थी तुम? टेल मी व्हाट इज cot 2a. Can you replace b by a? What is cot 2a? कॉट ए 2 कॉट ए प्लस -1 कॉट ए क्या कर रही हो तुम? 2 कॉट ए। कैमरा ऑन किया करो तुम अपनी क्लास में. कैमरा ऑन क्यों नहीं किया हुआ है? सर नेटवर्क इशू है, तभी माइक भी ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डबल एंगल फॉर्मूले समझ में आ गए? एक बार इनको रिवाइज करो, फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं. पेज 9, क्वेश्चन 1, ऑल पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. A to G सारे पार्ट करेंगे. पेज 9 पे. I'll write the question. क्वेश्चन को रीड करो, डिसाइड करो हाउ टू गो अबाउट इट. इन सब में हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला यूज होना है. Sir, could you repeat the page number? 9. Okay, sir.
आइडेंटिटीज मैंने यहाँ लिख दी, चीटिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, है ना। अब राइट साइड में 1 भी आ रहा है, लेफ्ट साइड में एंगल 4 थीटा है और यहाँ पे एंगल थीटा है, मतलब पहले 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे और फिर 2 थीटा को फर्दर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे। सो यू हैव टू यूज टू आइडेंटिटीज। फर्स्ट यू कन्वर्ट 4 थीटा इंटू 2 थीटा, देन 2 थीटा इंटू थीटा, राइट। और हमें 1 भी चाहिए, तो कॉस की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ। एंड 1 माइनस चाहिए ना तुम्हें, तो इसका मतलब हमें आइडिया लग गया, ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो दिस यू कैन राइट एज कॉस 2 इंटू 2 थीटा। तो cos 2 इंटू 2 थीटा वुड बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। हाँ, यहाँ तक पहुंच गया तुम। अब हमारा एंगल 2 थीटा हो गया, लेकिन हमें थीटा चाहिए। फिर आइडेंटिटीज देखो, जब भी तुम क्वेश्चन करोगे इस साइड में लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, तो उससे क्या होगा, आइडेंटिटी भी याद हो जाएंगी और गलती भी नहीं होगी। राइट ऑल द आइडेंटिटीज यूर यूजिंग। तो हमने यहाँ पे यूज किया cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। अब हम यूज करेंगे sin 2a। sin 2a कितना होता है, 2 sin a cos a। तो दिस इज बेसिकली sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sin 2 थीटा हो जाएगा 2 sin a cos a। which is RHS. So the first question is done. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घुस के लिखती है एकदम से, नजर भी नहीं आता एकदम, बिल्कुल यहाँ पे आंखों में चिपका के। बी पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम्हारा पेपर टफ आता है स्कूल में तो ये आएगा क्वेश्चन। क्या करना है दिव्या इसमें बताना। वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी फॉर सेक, है ना। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करके सेक को कॉस में कन्वर्ट करो। वीआईपी क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट सेक इनटू कॉस। तो बस उसका रेसिप्रोकल करना हो, मतलब 1/cos
हम्म। एलसीएम ले लो। अब वापस से आरएचएस जरा देखो। आरएचएस में डू वी हैव 1 - cos 8a? डू नीड 1 - cos 4a? ये सब कुछ आरएचएस में नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये आइडेंटिटी जो को अगर रीअरेंज करें तो क्या आता है? cos 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा, ये यूज करेंगे हम। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। दिस आइडेंटिटी यू कैन यूज हेयर एंड हेयर, दोनों जगह यूज कर लो। इसको अभी छोड़ो बिकॉज राइट साइड में tan 8a चाहिए, और tan 8a क्या होता है? sin 8a/cos 8a। तो cos 8a हमें चाहिए होगा, तो वी डोंट सिंप्लीफाई cos 8a। तो 1 - cos 8a को हाफ एंगल में करोगे तो क्या बनेगा? 2 sin² 4 थीटा। 8 थीटा की जगह 4 थीटा आ जाएगा। सिमिलरली 1 - cos 4a क्या हो जाएगा? 2 sin² 2 थीटा। 4 थीटा का आधा हो जाएगा। कर लो। So when you convert 1 - cos 8a into half angle, it is 2 sin² 4a, right? And this is 2 sin² 2a. अब प्रॉब्लम ये है कि आई वॉन्ट tan 8a ऑन द राइट साइड। जरा थोड़ा इसको देख लेते हैं। आई वॉन्ट sin 8a/cos 8a। cos 8a ऑलरेडी मेरे पास है। cos 8a डिनोमिनेटर में है। अब sin 8a कैसे आएगा? वी कैन यूज दिस। sin 8a होगा 2 sin 4a 4 थीटा cos 4 थीटा। तो 2 से 2 मत काटो, काम आएगा ये। एक sin 4a को मैं अलग कर लेता हूँ, बाकी को इकट्ठा लिखता हूँ। 2 sin 4a cos 4a। एक sin 4a किसके साथ क्लब कर दिया? cos के साथ। नीचे हमारे पास है 2 sin² 2a एज इट इज इंटू cos 8a। ये अब क्या बनेगा? दिस इज sin 8a। फिर इसका स्क्वायर नहीं आएगा? स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया ना, एक साइन अलग लिख दिया बाहर। मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस नहीं है बीच में। इफ यू हैव सपोज 3²
into 5 into 4. So can I write this 3 into 5 into 4 or not? मल्टीप्लीकेशन है। हाँ तो 2 sin 4 है तो लिखा है। बाहर क्यों 2? तू एक ही बात तो 2 यूज करोगी। मल्टीप्लीकेशन है ये बताया ना मैंने। अगर ये ऐसे लिखा होता तो एक 3 अंदर ले लिया मैंने। प्लस थोड़ी था कि वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मल्टीप्लीकेशन है। तो अब ये बन जाएगा sin 8 है। दिस इज sin 8 है, cos 8 है, नीचे बैठा हुआ है, दोनों दोस्त मिलके बन जाएंगे tan 8 है। आधा आंसर आ चुका है अब। 2 sin 4 है cos 4 है, डबल एंगल फॉर्मूला। ये रिवर्स मोड में आ गए ना, हम उल्टा यूज कर लिया हमने। अरे इसका डबल होता है ना, इस एंगल का डबल यहाँ पे आता है। एंगल डबल होगा ना। तो ये हमारा tan 8 आ चुका है। अब तुम्हें क्या चाहिए आंसर में, जरा देखो, वापस चीटिंग करो। हमें अब डिनोमिनेटर में tan 2a चाहिए। मतलब sin 4a का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। sin 4a को क्या करोगे, अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। फिर तो ये sin 8 कैसे आया? 2 sin θ cos θ कितना होता है? sin 2। 2 sin θ cos θ इज sin 2 θ। ठीक है। फॉर अ मोमेंट थीटा को 4a लिखो। लेट थीटा इक्वल टू 4a। और कोई कंफ्यूजन नव्या? कहाँ पे sin 4a? इसमें ये करो ना, वापस ये यूज कर लो। sin 4a को लिखो sin 2 into 2a। sin 2 θ इज 2 sin θ cos θ। अब लिखो sin 4a को sin 2 into 2a। तुम क्यों रो रही हो अक्षिता? तुम्हें क्या टेंशन है? कौन सा? क्या समझ में नहीं आया? एक तो ये मल्टीप्लिकेशन है। देखो अगर 2 2 into 3 + 5 है ना? तो मैं तुम्हारी बात सही है। 2 अगर मैंने अंदर लिया तो ये 2 into 3 हो गया और ये 2 into 5 हो गया। लेकिन अगर ये होता 2 into 3 into 5 तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मल्टीप्लिकेशन है ये। टू देखो 2 sin² 4a का मतलब है 2 sin 4a into sin 4a। ये तो मतलब है। ये थोड़ी 2 sin 4 into 2 sin 4a होगा। 2 एक ही तो बार आ रहा है ये। करो। तो अब वापस sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। इस बार हमने क्या किया, थीटा को 2a लो तो sin 4 थीटा हो जाएगा। sin 4a sin 2 into 2 हो जाएगा 2 sin 2a cos 2a। दिस इज 2 sin 2a cos 2a। दिस इज 2 sin² 2a। ये 2 कट गया। क्या हुआ जस? बत्ती गुल क्यों हो रही है? मुश्किल हो। ये सबसे टफ क्वेश्चन है अभी इस असाइनमेंट का। इसके बाद सारे इजी हैं। अब एक sin 2a कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ठीक है। एक sin 2a कट गया। तो अब cos 2a/sin 2a कितना हो गया? tan cot 2a। cot को नीचे ले आओ बस।
तो दिस इज cos 2a by sin 2a, cot 2a इंटू tan 8a, और cot को वापस tan में कन्वर्ट कर दो। ऐसा करो, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो और फिर तीसरी बार बिना देखे खुद से सॉल्व कर लो। वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्राइडे पेपर में आएगा ये, याद कर लो। कौन कर रहा है इसको बोर्ड पे दोबारा? नव्या का मन है, आओ नव्या। हाँ, कर दो, वरना अक्षता कर देगी। देख के करने का क्या फायदा है फिर? हाँ, मैथ ही तुम कर रही हो, ये तुम्हारा तो एग्जाम आने वाला है। जैसे तुम बोर्ड पे कर दो आके। कर लिया तुमने, बिना देखे कर लिया? फिर बस लास्ट tan 8 हो गया, उसके ठीक आगे है, वाला कर। आद्या यू हैव डन इट विदाउट सीइंग इट अगेन? और मैं कार में हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट अच्छा होगी। अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई तुम्हारी? फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा। अथर्व? सर बिना देखे कर रहा हूँ अभी।
क्या बात है। साइन 4 अलग कर लो, एक हाँ, बाकी क्लब कर लो। अब बिना देखे इसको दोबारा से करो, है ना। तुम्हारा हो गया अक्षिता। नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ। अरे ये तो कर लो एक बार बिना देखे। कर लिया। कर लिया, चलो नेक्स्ट पार्ट करो फिर। देख रही हो तुम तो। 2 sin 4 है, cos 4 है, हो गया ना, sin 8 है। ये तो था ना, 2 sin 4 है, cos 4 है, sin 8 है, हो गया। फिर sin 8 है, इसको साथ क्लब कर दूं। 2 sin 2 कट जाएगा। तो कोई tan c माइनस tan d होता है फॉर्मूला। tan tan c माइनस tan d। नहीं। सो वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और RHS में मेरे को लगा लग जाएगा। आ, नहीं तो उसमें तो वो लगाओ ना तुम, tan LHS से स्टार्ट करो और tan 2 थीटा लगा दो। फिर LHS में 4 थीटा है, RHS में थीटा है, तो पहले 4 को 2 में कन्वर्ट करो, फिर 2 को थीटा में कन्वर्ट करो। tan 2 थीटा 2 बार यूज करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आओ नव्या, और क्या आ गया तुम्हारा, बॉन्ड हो तुम। हो गया, एक sin 2 कट जाएगा। sec 8 है माइनस, हम्म सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट का जो आपने बोला था फिर से रिपीट करने के लिए, हम्म जो नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आपने बोला था वो फिर से। tan 4 थीटा को लिखो tan 2 × 2 थीटा, ठीक है। 4 थीटा नहीं, 2 tan 70 दिया हुआ है। हाँ तो उसके बाद वापस कन्वर्ट करोगे ना, tan 2 थीटा दोबारा कर लिखना पड़ेगा, 2 tan थीटा, दो टू बार अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। tan 2 × tan 2 35 थीटा हो जाएगा। 235 कहाँ से आ गया। फिर 2 tan 70 इज tan 80 माइनस tan 10। वो है tan 4 थीटा, tan 40 थोड़ी है वो, tan 4 थीटा है वो। फिर कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट, मैं शायद गलत क्वेश्चन हो तुम कौन सा क्वेश्चन देख रही हो, सही है, मैं वन उससे माइन पहले वाले टू क्वेश्चन में साइंस का 4 थीटा हो गया ना हाफ एंगल में, तुमने क्वेश्चन गलत कर लिया। ठीक। जिसका एक बी पार्ट था उसी का सी पार्ट करना है। इट इज cos 4 थीटा, सॉरी tan 4 थीटा इक्वल 4 tan थीटा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला हो गया तुम्हारा। हाँ, अब उसको अलग अलग कर लो, 2 sin² को अलग करो, रीअरेंज कर लो। हम्म हाँ, अब वापस करेंगे बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये tan 2 का होल स्क्वायर भी है। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी दोबारा लिखो साइड में यहाँ पे, tan 2 थीटा 2 tan थीटा
ओवर 1 - tan² थीटा। तो ये जो आइडेंटिटी है ये इसकी जगह भी आएगी और इसमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ। तो ये जगह sin 8 है। sin 8 बाय cos 8 बन जाएगा tan 8 और न्यूमरेटर में sin 4 को चेंज कर देंगे। एक मिनट मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। हम्म 8 है। वापस हाफ एंगल लग गया इसमें। cos 2 है। क्या हुआ थर्व, क्या कर रहे हो तुम? सर अभी इसको रिपीट करके कंप्लीट करा, सी पास स्टार्ट कर रहा है। ओके गुड, हो गया। सो नेक्स्ट वाले में tan 4 थीटा को पहले tan 2 थीटा में कन्वर्ट करो और tan 2 थीटा को फर्दर tan थीटा में कन्वर्ट करो। तो इफ यू सी द सी पार्ट, राइट साइड में tan थीटा है सिर्फ, इसको लिखो tan 2 × 2 थीटा एंड अप्लाई दिस आइडेंटिटी। 2 tan A is 2 tan A over 1 - tan²। तो 2 tan 2 थीटा over 1 - tan²2 थीटा। लेकिन आंसर थीटा के टर्म में है, तो tan 2 थीटा को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा। तो tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा over 1 - tan²थीटा। सेम आइडेंटिटी अगेन, 2 थीटा को फर्दर हाफ एंगल, बट यहाँ पे ध्यान रखना इसका होल स्क्वायर करना है तुम्हें। ये आएगा। तो 2 × 4 हो गया है। तो हियर यू नीड टू बी केयरफुल, पहले स्क्वायर कर लो उसको। 4 tan² थीटा एंड डिनोमिनेटर को ओपन मत करना, इसको अभी एज इट इज होल स्क्वायर करके छोड़ो। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लो। सर ये गलती से मिसप्रिंट तो नहीं हुआ हुआ इसमें? क्या? सर आपके इसमें मेरा ना सारा आ गया, बस डिनोमिनेटर में 6 की जगह 4 आ रहा है। वो मैं समझ गया ना, तुमने A - B का होल स्क्वायर A² + B² लिख दिया होगा। हाँ। A नहीं - B लिखा, का स्क्वायर होल स्क्वायर, अरे A² + B² -2AB होता है। तो 2A भी है। देखो अब तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ मैं। दिस इज 4 tan थीटा over 1 - tan²थीटा, राइट? होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो 1 - tan² थीटा का होल स्क्वायर -4 tan²थीटा। या तो तुम ये 2 × करना भूल गए होंगे, 2 का स्क्वायर 4। सर मेरा एक्चुअली मैंने ऊपर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये जो डिनोमिनेटर में उसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1 -
अच्छा आपको भी ऐसी है ना? हाँ, जब ये यहाँ पे एलसीएम लिया तो अब इसको खोलोगे ना नेक्स्ट स्टेप में, इसको रिवर्स कर दो अब। सर वो मैंने 4 नहीं किया, मैंने 2 किया हुआ। हाँ, ये टू इसका होल स्क्वायर नहीं किया हुआ तुमने। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें होल वो यूज करना है तुम्हें। फिर आ गया आंसर। हम्म। अब एक स्क्वायर कट जाएगा, ये वाली टर्म कट जाएगी स्क्वायर से। इसको ओपन कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये बन जाएगा 6 tan² थीटा। डी पार्ट तो सबसे सस्ता है, सबसे इजी, देखते ही हो जाएगा। तुम बोर्ड पे भी कर दोगे अभी, करियो। डी पार्ट में ना इसमें टू कॉमन लो, सबसे वाला जो अंदर अंदर रूट है ना, जो हमने अभी एक फॉर्मूला किया था ना, 1 - cos 2a कितना था, 2 sin² है। लेकिन अगर प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos², ये यूज करना है तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos² थीटा। नहीं, 8 है ना, राइट साइड में देखो ना तुम, इसमें टू कॉमन लो, 8 है ना वो, तो 8 का 4 बन जाएगा। सारा खेल आइडेंटिटीज का ही है इसमें। और ट्रिगो इज सब ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जो तुम्हें हमेशा यूज करना होगा। रेस्ट ऑफ मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है ये। सर मेरा न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है। कौन सा वाला ये? सी पार्ट। हाँ, सी पार्ट में पता है गलती का चांस यहाँ होता है। जब तुमने यहाँ पे इसको होल स्क्वायर किया तो सबसे पहली बात ये होगा 4 tan² थीटा, 1 - tan² थीटा का होल स्क्वायर। चेक करो ये किया है नहीं किया है। सर ये करा हुआ है। करा है। उसका जी एलसीएम सर। लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ तक यस आया। सर। अब a - b होल स्क्वायर ओपन जब करोगे तो आएगा a² + b² -2ab। यस सर। तो फिर तो आ गया आंसर, आना चाहिए। मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन एरर हुआ है इसमें, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, देखो 1, अरे तो टू एंगल का थोड़ी पार्ट है, cos 60 में ऐसे कैन यू टेक टू कॉमन, ऐसे लिख सकते हो क्या? तो जब तुम 2 + 2 × cos 8 थीटा में से टू कॉमन लोगे तो होगा 1 + cos 8 थीटा। 8 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो इस फॉर्मूले से, तो जाएगा 2 cos² 4 थीटा। मतलब 1 + cos 8 थीटा बन गया 2 cos² 4 थीटा। फिर कॉमन ले लो, ये गाड़ी चलती जाएगी, अंडर रूट हटते जाएंगे। फिर ये आ गया, उसके अगले वाला देख के कुछ हो रहा है। कौन सा डी पार्ट ना? नहीं ये हो गया, उसके बाद वाला देख के कुछ हो रहा है। बस ई पार्ट ना, ई पार्ट में एक बार तुम राइट हैंड साइड देखो जरा, राइट हैंड साइड पे नजर डालो, क्या है डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा? इन द डिनोमिनेटर यू हैव 2 sin है ना, sin ए आ रहा है ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 sin ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एलएचएस से स्टार्ट करो और 2 sin ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देखो क्या आता है। अथर्व हो गया अब ये वाला सी।
LHS से स्टार्ट कर लो इसको। नेक्स्ट वाले रहने तो बस नेक्स्ट क्लास में कर लूंगी। नेक्स्ट वाले में बताया ना, वो लेफ्ट साइड से टू हाँ, साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा टू साइन ए कॉस ए। फिर टू साइन ए कॉस ए को क्या लिख सकते हो, टू साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। साइन टू। हाँ, तो ये कहानी चलती रहेगी। फिर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो नेक्स्ट टाइम, फिर कॉस टू एक क्लब हो जाएगा। यहाँ पे हमने टू कॉमन ले लिया, तो ये हो गया टू कॉस स्क्वायर फोर थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। तो ये अब रूट से बाहर आ जाएगा, एक रूट बाहर आ जाएगा, ये वाला हट जाएगा ना, तो जाएगा टू प्लस, इसका रूट कितना हो गया, टू कॉस फोर थीटा। फिर टू कॉमन ले लो इसमें से, अंडर रूट के अंदर टू कॉमन लो, फिर वही फाल दोबारा फॉर्मूला लगा दो, ई करो। ये भी हाफ एंगल हो गया, फिर रूट से बाहर आ जाएगा, ये वाला रूट हटेगा, फिर टू कॉमन ले लो, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, RHS आ गया। तो तुम ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी के, है ना, जो नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। तुम्हारा टेस्ट भी है ना इस बार, यस सर, मैंने कहना मैथ्स था का, मैं वो रिलेशन फंक्शन का ना। नहीं नहीं, यहाँ पे होगा ना सैटरडे संडे को आना, बताया नहीं, होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो अपने टाइम टेबल, नहीं बताया भाई। ग्रुप में तो दिया हुआ था सर। मैं हाँ, 21st को दे सकती हूँ, मेरा 20th का ना केमिस्ट्री का यूनिट टेस्ट। मैम से बात करना, ठीक है। ओके, एंडिंग द क्लास। ओके, थैंक यू सर। बाय।